بسم الله الرحمن الرحيم. وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ تک رہا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ وہ اور ہر بن قیس بن حصن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ ہے اللہ اسے علم کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ منی میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی یار نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی، اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ وہ اور ہر بن قیس بن حصن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔
तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहां मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ ख़तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटील मैदान होते हैं। ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे, इसको वो चीज़ जिसके साथ मैं मबऊस किया गया हूँ। इसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और उस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया, यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। हज़रत इमाम बुखारी रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ ने अबू असामा की रिवायत से क़बलत अलमा का लफ्ज़ नकल किया है। इस खित्ता ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए मगर ठहरे नहीं, और सफ सफ इस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अलामत क़यामत में से यह है कि दीनी इल्म आट जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और अलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि अलामत क़यामत में से यह है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, ज़िना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, उसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल-ख़त्ताब को दे दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, आपने उसकी क्या तबीर ली? आपने फरमाया, इल्म। हज अलविदा में रसूल अल्लाह लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मुनी में ठहर गए। तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़बा करने से पहले सर मुंडा लिया। आपने फरमाया, अब ज़बा कर ले और कुछ हरज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर ले, और पहले कर देने से कुछ हरज नहीं। इब्न उमरू कहते हैं, इस दिन आपसे जिस चीज़ का भी सवाल हुआ, जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आपने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हरज नहीं। नबी से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बा कर लिया। आपने हाथ से इशारा किया और फरमाया कुछ हरज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़बा से पहले हलक़ा करा लिया। आपने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हरज नहीं। आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हरज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हरज से क्या मुराद है? आपने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह, गोया आपने इससे कत्ल मुराद लिया। मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है? तो इन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? इन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझे गिश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल खुदा ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसल या करब का कौन सा लफ्ज़? हज़रत असमा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दुजाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा, कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहब ईमान या साहब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़? फरमाया हज़रत असमा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद हैं।
3 बार उसी तरह कहेगा, फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा। तो वो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल्किस का वफ़द रसूल अल्लाह की खिदमत में आया। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है, या ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आपने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रसू हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद इन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान किफ़ार मुज़िर का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें, और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आपने इन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल इन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबा, हंतम और मज़फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शुबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नक़ैर कहते थे और बसा औकात मक़ैर। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। उक़बा ने अब वहाब बिन अजीज़ की लड़की से निकाह किया। तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उक़बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है, इसको दूध पिलाया है, ना तूने कभी मुझे बताया है। ये सुनकर उक़बा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है। तब सवार होकर रसूल अल्लाह की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और आपसे इसके मुतालिक दरियाफ्त किया। तो आपने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुतालिक ये कहा गया। तब उक़बा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा खावनत कर लिया। मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन जैद में रहते थे, जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी बारी आन हजरत की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन में आता। जिस दिन में आता इस दिन की वही की और रसूल अल्लाह की फरमूदा दीगर बातों की इसको खबर दे देता था, और जब वो आता तो वो भी उसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उम्र यहाँ हैं। मैं घबरा कर इसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूल अल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रसूल अल्लाह ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया, नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने तअज्जुब से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक शख्स हिज़म बिन अबी कब ने रसूल अल्लाह की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फलां शख्स माज बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चिकना चोर हो जाता हूँ और तवील क़रात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूल अल्लाह को वज़् के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। आपने फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हलकी पढ़ाए, क्योंकि इनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सभी कस्म के लोग होते हैं। एक शख्स उमर या बिलाल ने रसूल अल्लाह से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, इसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले। फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त का ऐलान कराओ। फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फ़ायदा उठाओ, और अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है?
آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تجھے مجھ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشق ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ رسول اللہ سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذاف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ ایک سفر میں رسول اللہ ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایریوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ میں رسول اللہ پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ وضع سن کر کوئی عورت بولی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا کہ میں ان حضرت پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے۔ امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا، اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو وضع سنائے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے حشام سے مانند اس حدیث کے۔ عورتوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وضع کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وضع فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹائی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شری سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شری، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطاکار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا ذکر کیا کہ آپ نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے ارازکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنے۔ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ رسول اللہ سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو، مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ قبیلہ قزا کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفعل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفعل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابوشا نامی آیا اور کہنے لگا،
ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आपने फरमाया कि अबू फिलां के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मगर अज़खर यानी अज़खर काटने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि उसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मिट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मगर अज़खर। मैंने हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मुअम्मर ने वहब बिन मनबा की मुताबत की, वो हमाम से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। जब नबी के मरज़ में शिद्दत हो गई तो आपने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों से कहा कि उस वक्त आप पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर वाउगल ज़्यादा होने लगा। आपने फरमाया मेरे पास से आठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूल के और आपकी तहरीर के दरमियान हाइल हो गई। एक रात नबी करीम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुभान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही खजाने भी खोले गए हैं। इन हुजरा वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक दफ़ा रसूल अल्लाह ने हमें इशा की नमाज पढ़ाई। जब आपने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो बाकी नहीं रहेगा। एक रात मैंने अपनी खाला मैमुना बन्नत अल-हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ुजा नबी करीम के पास गुजारी और नबी अकरम इस दिन उनकी रात में उन्हीं के घर थे। आपने इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, फिर घर तशरीफ लाए और 4 रुकत नमाज नफल पढ़कर आप सो गए, फिर उठे और फरमाया कि अभी तक ये लड़का सो रहा है या उसी जैसा लफ्ज़ फरमाया। फिर आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए और मैं भी वज़ू करके आपकी बाएं जानिब खड़ा हो गया। तो आपने मुझे दाएं जानिब खड़ा कर लिया, तब आपने 5 रुकत पढ़ें, फिर 2 पढ़ें, फिर आप सो गए। यहाँ तक कि मैंने आपके खर्राटे की आवाज़ सुनी, फिर आप खड़े होकर नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले आए। लोग कहते हैं कि अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं, आखिर आयत रहीम तक। वाक़या ये है कि हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की खरीद व फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हरीरा रसूल अल्लाह के साथ जी भर कर रहता, ताकि आपकी रफ़ाक़त में शकमपरी से भी बेफिक्री रहे और उन मुजलसों में हाजिर रहता जिन मुजलसों में दूसरे हाजिर ना होते और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत बातें सुनता हूँ, मगर भूल जाता हूँ। आपने फरमाया अपनी चादर फैलाओ, मैंने अपनी चादर फैलाई, आपने अपने दोनों हाथों की चलो बनाई और मेरी चादर में डाल दी, फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया, फिर इसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं भूला। हमसे इब्राहीम बिन अल-मुनज़्ज़र ने बयान किया, उनसे इब्न अबी फदीक ने उसी तरह बयान किया कि यूं फरमाया कि अपने हाथ से एक चलो इस चादर में डाल दी। मैंने रसूल अल्लाह से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए हैं, एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये नखरा काट दिया जाए। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने फरमाया कि बिलौम से मुराद वो नखरा है जिससे खाना उतरता है। नबी ने उनसे हज अलविदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें, फिर फरमाया लोगो, मेरे बाद फिर काफिर मत बिन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। नोफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे अभी इब्न कब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया,
तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहब इल्म कौन है। इन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हवा कि इन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहां फारिस और रूम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरिदगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हवा के एक मछली जनबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम योशा बिन नून को ले लिया और इन्होंने जनबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर इस पर रखकर सो गए और मछली जनबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहां तक इन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आप हयात था, वो उस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकदरत अलही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। इन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इसे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई किश्ती ना थी कि एक किश्ती उनके सामने से गुजरी, तो किश्ती वालों से इन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और किश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चौंची मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने उनकी किश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला इतिराज किया था। फिर दोनों चले। किश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न ईना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था, इसमें लक ज़ायद किया, जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे, हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। इन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब कबरिया रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मजीद वाक़यात इन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लदनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ते करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशरम ने यह हदीस बयान की, उनसे सफ़ियन बिन यीना ने पूरी की पूरी बयान की। एक शख्स रसूल अल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है? क्योंकि हम में से कोई गुस्सा की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है तो आपने उसकी तरफ सर उठाया
और सर उसी लिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आपने फरमाया जो अल्लाह के कलमे को सरबलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। मैंने रसूल अल्लाह को रमी जमार के वक्त देखा, आपसे पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने रमी से कब्ल कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया अब रमी कर लो, कुछ हरज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडा लिया। आपने फरमाया अब कुर्बानी कर लो, कुछ हरज नहीं। इस वक्त जिस चीज के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी, आपसे पूछा गया, आपने यही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हरज नहीं। एक मर्तबा मैं रसूल करीम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का इधर से गुजर हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। उनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज है? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आपसे वो कैफियत दूर हो गई तो आपने कुरान की ये आयत जो इस वक्त नाज़िल हुई थी तिलावत फरमाई, हे नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। आमिश कहते हैं कि हमारी क़रत में वमा औतू है, वमा औतियतम नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपा कर कहती थीं, तो किया तुमसे काबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा, हाँ। मुझसे इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दूर जाहिलियत के साथ करीब ना होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा यानी जमाना कफर के साथ करीब ना होती तो मैं काबा को तोड़ देता और इसके लिए दो दरवाजे बना देता, एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्न जुबैर ने यह काम किया। एक मर्तबा हजरत माज बिन जबल रसूल अल्लाह के पीछे सवारी पर सवार थे। आपने फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया, हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। आपने दोबारा फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया, हाजिर हूं ए अल्लाह के रसूल। आपने से 12 फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया, हाजिर हूं ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हवा। इसके बाद आपने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर ना कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? आपने फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छुपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में मुवाखजा ना हो। मुझसे बयान किया गया कि रसूल करीम ने एक रोज़ माज रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। माज बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत ना सुना दूं? आपने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूल करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या इहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आपने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी इहतिलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, फिर क्यों इसका बच्चा इसकी सूरत के मुशाबा होता है, यानी यही इसके इहतिलाम का सबूत है। दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है। मुझे बतलाओ वो क्या दरख्त है? तो लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ गए और मेरे दिल में आया कि मैं बतला दूं कि वो खजूर का पेड़ है। अब्दुल्ला कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई और मैं चुप ही रहा। तब लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही खुद इसके बारे में बतलाया है। आपने फरमाया, वो खजूर है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा को बतलाई। वो कहने लगे कि अगर तो
इस वक्त कह देता तो मेरे लिए ऐसे ऐसे कीमती सरमाया से ज़्यादा महबूब होता। मैं ऐसा शख्स था जिसे जरीन मजी की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मक़दाद को हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह से दरियाफ्त करें। तो इन्होंने आपसे इस बारे में पूछा। आपने फरमाया कि इस मरज़ में गुस्ल नहीं है, हाँ, वज़ू फ़र्ज़ है। एक मर्तबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम बांधें, और अहल शाम जफ़ा से और नजद वाले क़रन मनाज़िल से। इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधें। और इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूल अल्लाह से याद नहीं। एक मर्तबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम बांधें, और अहल शाम जफ़ा से और नजद वाले क़रन मनाज़िल से। इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधें। और इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूल अल्लाह से याद नहीं। एक शख्स ने आपसे पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? आपने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना साफा बांधे, और ना पाजामा, और ना कोई सरपोश ओढ़े, और ना कोई ज़फ़रान और वरस से रंगा हुआ कपड़ा पहने, और अगर जूते ना मिले तो मोज़े पहन ले और इन्हें इस तरह काट दे कि टखनों से नीचे हो जाएं।